بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری ماں رات نائٹ ڈیوٹی پر اسپتال جاتی تھی اور میں گھر میں اکیلی رہتی تھی، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے وہ روز مجھ پر سورہ جن پڑھ کر پھونک کر جاتی اور میں گہری نیند سکون سے سو جاتی۔ ایک دن اسپتال میں ایمرجنسی کیس آیا تو امی جلدی جلدی میں سورہ جن پڑھنا بھول گئیں اور میں ایسے ہی سو گئی۔ جب آدھی رات کو مجھے اپنی کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، میں نے جو ہی آنکھیں کھول کر دیکھا جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو کل ٹیسٹ ہے اور میں تو بالکل بھی نہیں پڑھ پائی۔ میم منزہ نے تو کچا چپا جانا ہے اگر میں ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تو کیا کروں، کچھ پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ میں نے جھنجھلا کر کتابیں ایک طرف پٹکتے ہوئے سوچا، نہ جانے کیا مصیبت تھی کہ ٹیسٹ کی تاریخ کے قریب ہوتے ہی میرا ذہن ایک دم جیسے بند سا ہو جاتا تھا۔ لاکھ سر پٹکتی مگر مجال ہے جو ایک لفظ بھی یاد ہو، اور آج کل تو ویسے ہی میرے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے تھے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، محبت بری بلا ہے۔ میں نے چائے کا کپ بنا کر پھر سے کتابوں کے ڈھیر میں سے ایک کتاب اٹھائی، شاید کچھ سمجھ میں آ جائے، مگر نہ جی، الفاظ نے تو گویا قسم کھائی ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کے پیچھے ریس لگا کر دوڑنا ہے۔ بیزار ہو کر میں نے کتاب پٹک دی اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ آج میں گھر میں اکیلی تھی۔ امی ہوتی تو ان سے کچھ باتیں کر کے ہی دل بہلا لیتی، مگر وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر تھیں۔ بہت دیر تک پتہ نہیں کیا کیا الا بلا سوچتی رہی، پھر آہستہ آہستہ میری پلکیں بوجھل ہونے لگی اور میں نیند کی وادی میں اتر گئی۔ پتہ نہیں رات کا کون سا وقت تھا، شاید آدھی رات ہو چکی تھی۔ سوتے سے اچانک آنکھ کھلنے کی وجہ سے پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہی میری نیند کیسے اور کیوں ٹوٹی۔ جب آہستہ آہستہ ذہن سے نیند کا خمار اترا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میری کمر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں خوف زدہ سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں پر کوئی چور یا ڈاکو کھڑا ہوگا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں وہاں کچھ اور دیکھوں گی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے چیخنا چاہا مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ میرا سر گھومنے لگا، اعصاب نے ساتھ چھوڑ دیا اور میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری خیال میرے ذہن میں آیا تھا وہ امی کا تھا، میری امی ڈاکٹر سعدیہ، جو اس وقت بھی یقیناً کسی آپریشن میں مصروف تھیں۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ امی اور پاپا نے چونکہ لو میرج کی تھی، اس لیے دونوں کے خاندان والے ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ دونوں پر ہی طرح طرح کی پابندیاں لگا دی گئیں، مگر وہ کسی طرح ان کے چنگل سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کورٹ میرج کر لی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آ گئے اور اس چھوٹے سے شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور ایک نئی زندگی کی ابتدا کر دی۔ امی ڈاکٹر تھیں۔ جلد ہی انہیں ان کی قابلیت کی بنا پر ایک اسپتال میں نوکری مل گئی۔ پاپا نے بھی نوکری ڈھونڈ لی۔ شادی کے 1 سال بعد میری پیدائش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی۔ انہوں نے جو گھر لیا تھا وہ 2 منزلہ تھا۔ نیچے 2 پورشن بنے ہوئے تھے، جس میں سے ایک میں اس گھر کے مالکین رہا کرتے تھے اور دوسرے پورشن کو انہوں نے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ ویسے تو وہاں امی اور پاپا کو ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ مکان کرائے پر لینے کے بعد چند دن گزرے ہی تھے کہ ایک دن ایک پڑوسی امی سے ملنے آئی اور اس نے کچھ ایسی باتیں کی کہ امی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے پاپا سے اس بات کا ذکر کیا، مگر انہوں نے اس سب کو عورتوں کی گھڑی ہوئی داستان کہہ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس پڑوسن خاتون کا کہنا تھا کہ اس گھر کا اوپر والا حصہ عذاب زدہ ہے، اکثر وہاں رات میں عجیب سے لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ امی اگرچہ کوئی ضعیف العقیدہ عورت نہیں تھی، مگر یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس دنیا میں انسان کی ٹکر کی ایک اور مخلوق بھی ہے، اسی لیے وہ یہ سب سن کر کافی پریشان ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے گھر کی مالکن سے بات کی تو وہ پہلے تو کچھ بھی بتانے پر راضی نہیں تھی، لیکن جب امی نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا، ہاں بیٹی، یہ بات تو سچ ہے کہ اس گھر کے اوپر ایک الگ ہی دنیا بسی ہوئی ہے، لیکن تمہیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آج تک انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم پچھلے 40 سال سے یہیں پر رہتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک ہمارا کوئی بچہ بھی اس چھت پر نہیں گیا، اور تب تک وہاں پر کوئی نہیں جاتا وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان کی بات سن کر امی کو کچھ اطمینان ہوا،
वैसे भी उनका ऊपर कोई काम नहीं था। यूं वो अपनी जिंदगी में गुम होती गईं। मेरी पैदाइश के तकरीबन 8 साल बाद पापा का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अम्मी भरी दुनिया में अकेली रह गईं। अब उनके पास मैं थी या फिर पापा की यादें। उन्होंने दोनों को सीने से लगाकर जीने का फैसला कर लिया। इद्दत के बाद जब वो वापस अपनी ड्यूटी पर जाने लगी तो उनका सबसे बड़ा मसला मैं थी, क्योंकि वो ना तो मुझे अपने साथ ले जा सकती थी और ना ही घर में अकेले छोड़ सकती थी। ऐसे मौके पर फिर से घर की मालकिन ने हमारी मदद की और मुझे अपने पास रख लिया। उनका नाम सफिया था और वो उम्र में अम्मी से काफी बड़ी थी, इसलिए वो उन्हें सफिया खाला कहा करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन अम्मी के जाने के बाद मैं बहुत रोई थी। सफिया खाला ने मुझे बहलाने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं पहली बार इस तरह उनसे जुदा हुई थी। इससे पहले तो पापा ही मुझे संभालते थे, लेकिन वो भी अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। मेरा रोना बिलखना वक्ती तौर पर खत्म तो जरूर हुआ था, मगर मेरा दिल किसी खेल में लग ही नहीं रहा था। मैं सफिया खाला के पोर्शन में घूमती रही। इधर उधर फिरते फिराते मैं सीढ़ियों के करीब आ गई। सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ एक दरवाजा था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। सफिया खाला और उनके घर वाले उन सीढ़ियों पर कदम भी नहीं रखते थे। मैं ना समझ थी, इसलिए उन सीढ़ियों पर चढ़कर बैठ गई। उसी वक्त मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। ऊपर वाले दरवाजे के करीब एक छोटा सा काले रंग का बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। उसके काले रंग के बाल धूप में चमक रहे थे। वो अपनी छोटी छोटी और खूबसूरत नीली आंखों से मुझे देख रहा था। वो इतना प्यारा और इतना क्यूट था कि बेइख्तियार ही मेरा दिल मचल उठा। मैं जल्दी से उसे उठाने के लिए उसके करीब जाने के लिए लपकी, लेकिन उसी वक्त किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया। इस अचानक की मुदाखलत पर मैंने चिल्ला कर देखा। वो सफिया खाला थी, जो खौफज़दा नजरों से सीढ़ियों की तरफ देखती हुई मुझे बाजू से पकड़कर अंदर लेकर जा रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ खाला, मुझे क्यों खींच कर ले जा रही हैं? वो बिल्ली का बच्चा तो उठाने दें। खाला चलते चलते रुक गईं। उन्होंने घबरा कर पूछा, कौन सा बिल्ली का बच्चा? आयजा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, जहाँ पर वो छोटा सा बच्चा बैठा उदास सी नजरों से मुझे देख रहा था। उन्होंने सहमी हुई नजरों से मुझे देखा और फिर सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। अचानक ही न जाने क्या हुआ कि वो तेजी से मुझे लेकर कमरे में घुस गई। बिल्ली का बच्चा सीढ़ियों के आखिर तक चलकर आया था और जब खाला मुझे लेकर अंदर जा रही थी तो उसने बारीक सी आवाज में मियाऊं भी किया था। मैं हैरान हैरान सी उन्हें देखती रही, मगर जाहिर है मेरी किसी बात का जवाब देने के बजाय उन्होंने मुझे हल्की सी डांट पिला दी कि आइंदा कभी भूल कर भी सीढ़ियों पर कदम न रखूं। शाम को जब अम्मी वापस आईं तो खाला सफिया उन्हें अलग ले जाकर काफी देर तक कुछ कहती रहीं। फिर जब वो वापस आईं तो उनके चेहरे पर कुछ परेशानी और घबराहट नजर आ रही थी। वो मुझे घर वापस ले आईं। अगले दिन भी वो जाते हुए मुझे वहीं छोड़ आईं। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि मैं सीढ़ियां चढ़कर देखूं, लेकिन इस बार सफिया खाला बहुत मोहतात थी। उन्होंने मुझे भूले से भी सीढ़ियों के करीब भटकने न दिया। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं नजर बचाकर कमरे से निकल आई। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि सीढ़ियों पे वही बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसके करीब बैठ गई और उसके नर्म बालों पर प्यार से हाथ फेरने लगी। वो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से मुझे देखता रहा। काफी देर यूं ही बैठने के बाद वो दौड़ता हुआ ऊपर चला गया और मैं अंदर आ गई। उस दिन जब अम्मी वापस आई तो कल की तरह खाला सफिया को एक तरफ ले गई और कुछ देर बातें करने के बाद वापस आ गई। उस दिन उन्होंने काम से फारिग होकर मुझे अपने पास बिठा दिया और फिर कुरान मजीद खोलकर देर तक सूरजिन पढ़ती रहीं और मुझ पर दम करती रहीं। उसके बाद से तो ये उनका मामूल हो गया। वो रोजाना मुझ पर सूरजिन पढ़कर फूंक दिया करती। उसके बाद मैंने 2-3 मर्तबा उस बिल्ली के बच्चे को देखा था। एक बार तो सफिया खाला की कड़ी निगरानी के बावजूद भी मैं सीढ़ियों के करीब पहुंच गई थी, मगर जो ही मैंने रीलिंग पर हाथ रखते ही पैर ऊपर रखा, अचानक ही मुझे एक जोरदार झटका लगा, जैसे मैंने बिजली के तार पर हाथ रख दिया हो। मैं झटके से पीछे की तरफ गिरी। मेरी चीख सुनकर सफिया खाला दौड़ती हुई आई और मुझे उठाकर ले गईं। गिरने से सर पर अच्छी खासी चोट आई थी। उस दिन मुझे सख्ती से अम्मी ने मना किया था कि मैं हरगिज भी इस तरफ ना जाऊं। उन्होंने अस्पताल से चंद दिन की छुट्टी भी ले ली थी,
वो आखिरी बार था जब मैं उस तरफ गई थी। उस दिन के बाद मुझे भी उस तरफ जाने से डर लगने लगा था। अलबत्ता मुझे बिल्ली का वो बच्चा बहुत याद आता था। वक्त गुजरता गया। मैंने पहले बचपन और फिर लड़कपन को खैराबाद कहते हुए जवानी में कदम रख दिया। जल्द ही मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ। खुदा ने रंग रूप और नैन नक्श तो प्यारे बनाए ही थे, मुझे जिस्म भी बहुत पुरकशिश दिया था। कई लड़कों ने मेरी तरफ पेशकदमी की थी, मगर मेरे दिल में कभी किसी के लिए भी कोई जगह नहीं बनी थी। कॉलेज में जिंदगी के नए हंगामों के बीच वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। मेरी जिंदगी एक लगी बंधी रूटीन पर चल रही थी, जिसमें तब्दीली उस दिन आई जिस दिन मैंने आमिर को देखा। आमिर मुझे कॉलेज के रास्ते पर जाते हुए नजर आया था। उसे देखकर मैंने पहली बार अपने दिल में हलचल होती महसूस की। वो सुर्ख और सफेद रंगत का मालिक एक गोरा चिट्टा नौजवान था, जिसकी आंखों का रंग नीला था। उन नीली आंखों में मैंने अपने लिए मोहब्बत देखी तो बेखुद हो गई। आमिर का हाल भी मुझसे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। चंद दिन तक तो बस आते जाते एक दूसरे का सामना होता रहा। उसके बाद वो रोजाना कॉलेज के गेट के करीब आकर खड़ा हो जाता। मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकलती तो उसे मुस्कुराकर अपना इस्तकबाल करते हुए पाती। जरी मेरी बहुत अच्छी और करीबी दोस्त थी। वो ये आंखों ही आंखों में होने वाली बातचीत भाप गई। अगले दिन जब वो मेरे साथ कॉलेज से निकली तो आगे बढ़ने के बजाय कॉलेज की एक दीवार के पास खड़ी हो गई। मैंने देखा वो भी वहीं पर करीब ही खड़ा था। मैंने उसे हैरत से देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? घर नहीं जाना क्या? वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे फायदे के लिए ही तो रुकी हूँ, इतनी जल्दी मत करो। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? उसने मुझे शरीर नजरों से देखते हुए धीमी आवाज में कहा, यार आयजा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ आंखों ही आंखों में इशारेबाजियां करते रहते हो, मगर ना वो तुमसे कुछ कहता है और ना ही तुम उससे। आज मैं तुम लोगों का ये मसला हल करवा के ही रहूंगी। मेरे चेहरे पर सुर्खी छा गई। मैंने उसे मसनूई गुस्से से देखते हुए कहा, जरी की बच्ची, बाज आ जा इन बातों से, पता नहीं क्या औल-फौल बक रही है। वो हंस पड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो अचानक ही आगे बढ़ी और आमिर के पास जाकर खड़ी हुई। फिर पता नहीं वो उसे क्या क्या कहने लगी। आमिर मेरी तरफ देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। उसकी निगाहों की तपिश से घबराकर मैं दूसरी तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद सरी मुस्कुराती हुई वापस आई और कहने लगी, चलो भाई, अब बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा मसला तो हल कर दिया है मैंने। मैंने घबराकर उससे पूछा, क्या कहा है तुमने उसे? कुछ उल्टा सीधा तो बोलकर नहीं आ गए हो? उसने आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं, बस ये बताकर आई हूँ कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। वैसे अगर आज किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो उठा लेना। और उस दिन न जाने कितनी बार मैंने मोबाइल चेक किया था। रात के तकरीबन 10 बजे फोन बजा। मैंने जल्दी से अटेंड करके पूछा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से किसी ने गंभीर आवाज में कहा, क्या अब मुझे अपनी पहचान करवानी पड़ेगी? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने धीमी आवाज में कहा, आमिर। वो हंस पड़ा। उसने कहा, मैं जानता था कि आप मेरी आवाज जरूर पहचान लेंगी, और अगर ना पहचान पाई तब भी आपका दिल धड़क कर आपको बता देगा। उसकी बातों में ऐसा सहर, ऐसा जादू था कि मैं मशहूर होकर रह गई। अब हम दिन भर फोन पर बातें करते रहते थे। जरी कभी कभार मुझे आमिर का नाम लेकर बहुत छेड़ती थी, मगर मैं हंस कर रह जाती। आमिर और मेरी मोहब्बत हर दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती गई। अब हम दोनों को एक दूसरे के बगैर करार नहीं मिलता था। अम्मी से छुपकर और बहाने बनाकर मैं अब उसके साथ बाहर भी मिलने लगी, मगर तन्हाई में भी उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जो मुझे नागवार गुजरती। लेकिन अब अम्मी को मेरी तरफ से कुछ खुटका सा लग गया था। मैं कहीं भी जाती तो वो 1000 सवाल पूछने के बाद ही जाने की इजाजत देती थी। मुझे शर्मिंदगी भी होती थी कि मैं उनसे झूठ बोलकर आमिर से मिलने चाहती थी। बहुत सोच समझकर मैंने आमिर से इस बारे में बात करने का फैसला कर लिया। और एक दिन जब हम एक पार्क में बैठे हुए थे, मैंने उससे पूछ ही लिया, आमिर, हम कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम अपने वालिदैन को रिश्ता लेने के लिए कब भेजोगे? आमिर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन उसने फौरन ही खुद को संभाल कर जवाब दिया, मैं जल्द ही उनसे बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। उसके बात पर मेरी तसल्ली तो नहीं हुई, ताहम मैं चुप जरूर हो गई। हम काफी देर तक वहां पर बैठे रहे।
अचानक ही आमिर ने एक तरफ देखा और सब परेशान सा हो गया। उसे इससे पहले कभी भी मैंने इतना परेशान नहीं देखा था। मैंने उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा, मगर मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है आमिर, क्या हुआ है? वो उसी तरह उस तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम अब घर जाओ। मैं हैरत से उसे देखने लगी। मेरे मजीद कुछ पूछने से पहले ही वो उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, जाओ आयजा, अब बहुत देर हो गई है, तुम्हारी अम्मी परेशान होंगी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ रवाना हो गया। मुझे उसके इस अजीबोगरीब रवैये पर बहुत ज्यादा हैरत हुई थी। खैर, मैंने भी वापस घर की राह ली। आज अम्मी अस्पताल से आई तो बहुत फिक्रमंद नजर आ रही थी। खाने की मेज पर भी वो गुमसुम सी बैठी थी। मैंने कुछ देर तक तो इंतजार किया कि वो खुद ही बता देंगी, मगर काफी देर गुजरने के बाद भी उन्होंने कुछ न कहा। तो मैंने पूछ लिया, अम्मी क्या बात है, आप इतनी फिक्रमंद क्यों हैं? कोई परेशानी की बात है क्या? अम्मी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, बेटा परेशानी की बात तो है, आज से मेरी नाइट ड्यूटी लग गई है। मैं भी घबरा गई। मैंने कहा, नाइट ड्यूटी? यानी मुझे रात में यहाँ अकेला रहना पड़ेगा? अम्मी ने इस बात में सर हिलाकर अफसरदा से लहजे में कहा, हाँ बेटी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी ड्यूटी के औकात तब्दील करवा सकूं, मगर कामयाबी नहीं हुई। मेरी कलीग डॉक्टर साजिदा छुट्टी पर हैं, इसलिए बस एक हफ्ता मुझे ही रात को उनकी जगह पर काम करना पड़ेगा। मैंने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, लेकिन मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? अम्मी ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है बेटी, सफिया खाला का पोर्शन तो बिल्कुल पास ही है, अकेली कहाँ हो तुम। अम्मी इस तरह की बातें करती और मुझे हौसला देती रही, मगर घर में अकेले रहने का तस्वुर मेरे लिए बहुत वहशतनाक था। खैर, शाम हुई तो अम्मी जाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी निगरानी में घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करवाए। उसके बाद वो कुरान मजीद लेकर सूरजिन पढ़ने लगी। पढ़कर मुझ पर दम करने के बाद वो खुदा हाफिज कहकर ढेरों नसीहतें कर कर चली गई। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। जूं जूं रात हो रही थी, मेरे ऊपर खौफ का गलबा हो रहा था। मैंने खाने के लिए बाहर निकलने के बजाय चिप्स के पैकेट से काम चला लिया और जल्दी ही सोने के लिए लेट गई। अजीब बात थी कि जब अम्मी यहाँ होती थी तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद मैंने फोन उठाया और आमिर को फोन करने लगी। उसने पहली बेल पर ही कॉल अटेंड कर ली। क्या बात है भाई, आज शहजादी साहिबा को हमारी याद कैसे आ गई? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी याद तो हर घड़ी आती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ कहती, अचानक ही बाहर से जोरदार छन्नाके की सी आवाज सुनाई दी। मैं कांप गई। आखिर ये क्या था? ये आवाज शायद फोन की दूसरी तरफ भी पहुंच गई थी। इसीलिए आमिर ने फिक्रमंद आवाज में कहा, क्या हुआ आयजा, कोई मसला है क्या? मैंने घबराती और लरसती हुई आवाज में कहा, पता नहीं आमिर, बाहर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी है, न जाने क्या है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अम्मी भी घर पर नहीं है। आमिर थोड़ी देर खामोशी के बाद बोला, अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो मैं आ जाऊं? मैं जल्दी से उठ बैठी और कहा, हाँ आ जाओ। ठीक है, थोड़ी देर तक मैं पहुंच जाता हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया। चंद मिनट के बाद डोर बेल बजने लगी। मुझे हैरत जरूर हुई कि आमिर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। बहरहाल मैंने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। अजीब बात थी, आखिर फिर ये बेल किसने बजाई? रात के सन्नाटे से मुझे डर लगने लगा, तो मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और लाउंज के सोफे पर सिमट कर बैठ गई। उसी वक्त मेरे कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई वायलिन बजा रहा हो। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे की तरफ देखने लगी। डर और खौफ की शिद्दत से मेरा सारा बदन कांपने लगा। आखिर कौन था जो मेरे कमरे में बैठ के वायलिन बजा रहा था? पता नहीं कितनी देर गुजरी थी, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे इस डर और खौफ की हालत में सदियां गुजर गई हों। बड़ी मुश्किल से ये वक्त काटा और दरवाजे पर फिर से डोरबेल बजी। मैं लरसते कांपते उठी और दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? आयजा, मैं हूँ आमिर, दरवाजा खोलो। आमिर की आवाज सुनकर जैसे मेरे जिस्म में फिर से जान आ गई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। आमिर मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मैंने उसे एक सोफे पर बिठा दिया और पूछा, क्या पियोगे आमिर, चाय या कॉफी?
आमिर ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, चाय कॉफी छोड़ो, ये बताओ कि तुम तो ठीक हो ना? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैंने खुद पर काबू पाते हुए उसे सब कुछ बता दिया। कॉल बेल का बजना और बाहर किसी का ना होना, कमरे में वायलिन की आवाज, ये सब सुनकर वो कुछ परेशान सा नजर आया। ध्यान हटाने के लिए हमने दूसरी बातें शुरू कर दी, एक दूसरे के बारे में, पढ़ाई के बारे में और अपने मुस्तकबिल के बारे में। बातें करते करते हम एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। आमिर ने मेरा हाथ थाम लिया, मगर दूसरे ही लम्हे आमिर को एक झटका सा लगा और वो स्प्रिंग की तरह उछलकर मुझसे दूर हो गया। मैं हैरत से उसे देखने लगी। वो बहुत बौखलाया हुआ और घबराहट का शिकार दिखाई दे रहा था। मैंने उससे पूछा, आमिर क्या बात है, क्या हुआ? वो थूक निगलते हुए बोला, कुछ नहीं। मैंने इसरार करते हुए कहा, कुछ तो हुआ है, वरना तुम इतने घबराए हुए क्यों होते? वो चंद लम्हे तक इर्द गिर्द देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम कोई तावीज वगैरह पहनती हो? मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं तो, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बस यूं ही, तुमने जो कुछ बताया था ना कुछ देर पहले, इसी हवाले से पूछ रहा था, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि कोई खास बात तो जरूर है। मैंने उससे कहा, तावीज वगैरह तो नहीं पहनती, लेकिन अम्मी जाते वक्त मुझ पर सूरज जिन की तिलावत करके दम कर दिया करती हैं। आमिर के चेहरे पर मेरी इस बात से कुछ अजीब से तासुरात नजर आए, जिन्हें मैं समझ नहीं पा रही थी। वो थोड़ी देर तक मजीद बैठने के बाद उठ गया। तुम जा रहे हो क्या? मैंने उसे उठते हुए देखकर इस्तिराब के आलम में खड़े होते हुए पूछा। उसके जाने का मतलब ये था कि मुझे फिर उस डर और खौफ से भरे माहौल में तन्हा रहना पड़ेगा। आमिर ने कहा, हाँ आयजा, मेरी वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और इसीलिए मेरा उनके पास रहना भी जरूरी है। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा अब। ये कहकर वो चला गया। मुझ में अपने कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए अम्मी के कमरे से एक कंबल और तकिया ले आई और सोफे पर ही सो गई। बाकी का वक्त सुकून से गुजरा और सुबह 4 बजे के करीब अम्मी भी वापस आ गई। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था, वरना वो परेशान हो जाती, इसलिए उनके पूछने पर सब ठीक था कहकर उन्हें मुतमईन कर दिया। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई, बल्कि नींद ही पूरी करती रही। मेरे ना बताने के बावजूद अम्मी समझ गई थी कि मैं डरती रही हूँ और सो नहीं पाई हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे नहीं जगाया। वो खुद भी रात भर की थकी हुई थी। उनके आने के बाद ही मैंने अपने कमरे में झांकने की हिम्मत की थी। शाम होते ही एक बार फिर मुझे डर लगने लगा। काश कि मेरे बस में होता तो अम्मी को कभी जाने न देती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोश होकर बैठ गई। अम्मी जाने से पहले मुझ पर सूरज चिन्ह पड़कर दम करना नहीं भूली थी। वो चली गईं और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे आज भी डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो न जाए, कोई खौफनाक वाकया न पेश आ जाए, मगर खैरियत गुजरी कि उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके बाद चंद दिन सुकून से ही गुजरे थे। मैं अब मुतमईन हो गई थी, इसलिए डर भी नहीं लग रहा था। अम्मी की नाइट ड्यूटी 1 हफ्ते तक की थी और आज आखिरी दिन था। उन दिनों में मैंने पहली बार ये महसूस किया था कि अम्मी के बगैर रहने का तस्वुर कितना हौलनाक और भयानक है। मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और टिफिन में डालकर उन्हें दिया। आज उन्हें कुछ देर हो गई थी। वो लिबास तब्दील करने के लिए जा रही थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी। उन्होंने नंबर देखा तो अस्पताल का था। उन्होंने फौरन ही कॉल अटेंड कर ली। दूसरी तरफ एक नर्स बेहद परेशानी के आलम में कह रही थी, मैडम जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचने की कोशिश करें। एक पेशेंट को बहुत ही नाजुक हालत में लाया गया है, प्लीज मैडम फौरन आए। ये सुनकर तो अम्मी के हाथ पांव भी फूल गए। उन्होंने कहा, मैं आ रही हूँ, बस 20 मिनट के अंदर अंदर आ रही हूँ। वो सब कुछ भूलकर गाड़ी में जा बैठी। मैंने दौड़कर उन्हें टिफिन पकड़ाया जिसे उठाना वो भूल गई थी। अम्मी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, बेटी आज रात तुम सफिया खाला की तरफ चली जाना, मैं उन्हें फोन कर दूंगी। मैंने सर हिलाते हुए कहा, जी ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत करें। वो चली गई थी और मैं वापस अंदर आकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धोकर स्टैंड पर रखे और कल के लिए कपड़े इस्त्री करने लगी। आज काफी थकन हो गई थी, इसलिए मैं जल्द ही सो गई। पता नहीं रात का कौन सा वक्त था, शायद आधी रात हो चुकी थी। सोते से अचानक आंख खुलने की वजह से पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ही मेरी नींद कैसे और क्यों टूटी। जब आहिस्ता आहिस्ता जहन से नींद का खुमार उतरा
तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी कमर पर किसी ने हाथ रखा हो। मैं खौफजदा सी होकर उठ बैठी। जाने कौन था? मैंने डरते डरते पीछे देखा। मुझे यकीन था कि वहां पर यकीनन कोई चोर या डाकू खड़ा होगा, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं वहां कुछ और देखूंगी। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वहां पर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल ऐसे उड़ रहे थे गोया हवा चल रही हो। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थीं। वो दरवाजे में खड़ी थी, मगर उसका हाथ कई फुट दूर रखे हुए बेड पर मुझ तक पहुंच रहा था। ये सब कुछ देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने चीखना चाहा, मगर आवाज हलक में अटक गई। मेरा सर घूमने लगा, असाप ने साथ छोड़ दिया और मेरा जहन अंधेरों में डूबता चला गया। बेहोशी का ये वक्फा बहुत मुख्तसर था। चकराते हुए सर के साथ मैंने आंखें खोल दी और डरते डरते दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था और वहां पर किसी का नामो निशान भी नहीं था। मैंने सुकून की गहरी सांस ली। शायद मैंने ख्वाब देखा था। मैं किसी कदर मुतमईन होकर दोबारा लेटने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। वही औरत बेड पर मेरे करीब बैठी खूंखार निगाहों से मुझे देख रही थी। मेरे हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। मुझे डरते और चीखते हुए देखकर उसके होठों पर एक सफाक सी मुस्कुराहट आ गई। मैं जल्दी से बेड से नीचे खिसक गई और बाहर भागने के लिए कमरे का दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने बेबसी से दरवाजे के हैंडल को देखा। दरवाजा गोया जाम हो गया हो। ये दरवाजा मेरे हुक्म के बगैर नहीं खुलेगा, इसीलिए तुम्हारी कोशिश बेकार है। उस औरत ने इसी तरह सफाकी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। तुम कौन हो? मैंने सरतापा लरसते हुए कहा और दरवाजे के हैंडल पर जोर डालकर खोलने की कोशिश करने लगी। मेरा नाम जोरा है, मैं आमिर की मंगेतर हूँ। उसने मुझे शोला बार नजरों से घूरते हुए कहा। आमिर? आमिर की मंगेतर? मैंने हैरानी से उसे देखा। हाँ, मैं आमिर की मंगेतर हूँ। आमिर जिनज़ादा है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो, उसने कहा। मैं सुन सी खड़ी रही। मेरा दिल आमिर को जिनज़ादा तस्लीम नहीं कर रहा था, मगर सामने खड़ी औरत की वजह से मेरा यकीन डानवाडोल होने लगा, जो बंद दरवाजे से भी आ गई थी। वो इंसान कैसे हो सकती थी? तुम झूठ बोल रही हो, आमिर जिनज़ादा नहीं है, मैंने कहा। ये सुनकर वो छलांग लगाकर छत पर लटक गई। मैं आंखें फाड़े उसे छत पर उल्टा चलते हुए देखने लगी। उसने मेरी तरफ देखा और अचानक उसका चेहरा खून से रंगीन होने लगा। खून की बूंदें फर्श पर टप टप करके गिरने लगी। मैंने चीखना चाहा, मगर मेरी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। जोरा मेरी हालत देखकर कहकहे लगाने लगी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैंने आंखें खोली तो मेरे पास अम्मी और सफिया खाला बैठी हुई थी। वो दोनों फिक्रमंदी से मुझे देख रही थी। आयशा बेटा, अब कैसी तबीयत है? अम्मी ने प्यार भरे लहजे में कहा। मैं उठकर बैठ गई और फर्श के उस कोने को देखा जहाँ खून गिरे देखा था। वहाँ अब शफाफ फर्श नजर आ रहा था। मुझे उस तरफ देखते हुए खाला सफिया ने देखा तो कहने लगी, क्या हुआ बेटा? मैंने खौफजदा नजरों से उधर देखा। वो एक औरत मेरे कमरे में आई थी। उसने मुझे बहुत डराया अम्मी। मैं ये कहते हुए अम्मी से लिपट गई। अम्मी ने मुझे परेशानी से देखा। ये तुम्हारा वहम होगा बेटा, अम्मी ने मुझे बहलाते हुए कहा। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं अम्मी नहीं, वो मेरा वहम नहीं था, वो सचमुच थी। यहाँ पर छत पर उल्टी होकर चल रही थी। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? मैं यज़ियानी अंदाज में चिल्ला कर रोने लगी। अम्मी मेरी इस हालत को देखकर बुरी तरह घबरा गईं। उन्होंने मुझे गले लगाकर थपकते हुए कहा, ठीक है बेटी, ठीक है, अब मैं हूं ना यहाँ पर, अब कोई नहीं आएगा यहाँ तुम्हें डराने के लिए, बस अब मत रो। मैंने रोते हुए कहा, अब नहीं जाएंगी ना कहीं? अम्मी ने आंसू भरी आंखों से मुझे देखकर कहा, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी मेरी जान, कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। वो प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। मैं किसी छोटी बच्ची की तरह उनसे लिपट गई। फिर अम्मी ने मुझे नींद की मेडिसिन खिलाई और मेरे पास बैठी रही। थोड़ी ही देर में मैं सो गई। न जाने कब तक मैं सोई रही कि एक अजीब से एहसास से मेरी नींद टूट गई थी। कमरे में शाम का अंधेरा फैल रहा था। मैं उठकर बैठ गई। सामने नजर पड़ते ही मैं लरसने लगी। वही औरत फिर से मेरे कमरे में मौजूद थी। आमिर को छोड़ दो,
नहीं तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। वो बिना रुके भयानक आवाज में बोले जा रही थी। मैंने दोनों कानों पर हाथ रख दिए और आंखें बंद कर ली। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और खाला सफिया अंदर आई। उन्हें देखकर वो औरत गायब हो गई थी। खाला को देखते ही मैं भागकर उनके पास आ गई। खाला सफिया ने मुझे परेशानी से देखा। खाला, वो फिर से आ गई, मैंने रोते हुए कहा। खाला मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने मोबाइल उठाकर आमिर को कॉल करने की कोशिश की। बेल जा रही थी मगर कॉल पिक नहीं हो रही थी। तंग आकर मैंने मोबाइल बेड पर फेंक दिया और खाला सफिया के साथ बाहर बरामदे में आ गई। अम्मी ने मुझे देखा और खाला सफिया को मुझसे दूर ले जाकर सरगोशी में कुछ कहने लगी। मैं मुतजस्सिस नजरों से उन्हें देखती रही। थोड़ी देर बैठने के बाद वो वापस चली गई। मैं एक लम्हे के लिए भी अकेले रहने पर राजी नहीं थी, इसलिए अम्मी ने अस्पताल से छुट्टी ले ली। वो सारा दिन ही मेरे साथ साथ रही। रात को मैं जिद करके उन्हीं के साथ सो गई। रात का आधा हिस्सा गुजरा तो अम्मी गहरी नींद सो गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसी वक्त कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी। खिड़कियां और दरवाजे ऐसे लरस रहे थे जैसे बाहर आंधी या तूफान आ गया हो। मैं डरकर कंबल में लिपट गई। उसी वक्त मेरी नजर कमरे के दाएं तरफ वाली दीवार पर पड़ी। मैं साकत पड़ी उसे देखे गई। वहाँ वही औरत बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर पहले की तरह ही नफरत नजर आ रही थी। मैं घबराकर अम्मी को आवाजें देने लगी। अम्मी, अम्मी उठे, देखें वो फिर आ गई है। अम्मी आप उठती क्यों नहीं है? मैं रूहानसी होकर उन्हें झंझोड़ने लगी, मगर अम्मी के जिस्म में जंबिश तक न हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी हो। उसने एक खौफनाक कहकहा लगाते हुए कहा, तुम क्या समझती हो कोई तुम्हारे पास होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम्हारी माँ मेरी मर्जी के बगैर आंखें नहीं खोल सकती, न मुझे देख सकती है। तुम्हारी मुझसे इसी सूरत में जान छूट सकती है जब तुम आमिर का पीछा छोड़ दोगी, वरना हर जगह मुझे ही पाओगी। ये कहकर वो कमरे में चकराने लगी। उसकी हरकतें इतनी दहशतनाक थीं कि मैं ज्यादा देर तक अपने हवास बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। दोबारा होश आया तो अम्मी को अपने ऊपर झुके हुए देखा। वो मुझे सख्त परेशानी से देख रही थी। मैं रोते हुए उनसे लिपट गई। अम्मी, अम्मी वो कहती है कि आमिर को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अम्मी ने हैरत से मुझे देखा और कहा, कौन आमिर? अम्मी की बात सुनकर मैं होश में आई, मगर अब उन्हें बता देने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो हैरत से सुनती रहीं, फिर बोली, बेटी तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सर झुकाकर रह गई। अम्मी ने फिर पूछा, तुमने आमिर से इस सब के बारे में पूछा? मैंने नफी में सर हिलाते हुए बेबसी से कहा, वो कॉल ही नहीं उठा रहा। वो औरत कहती है कि आमिर एक जिनज़ादा है, लेकिन वो झूठ बोलती है अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। आमिर मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। मेरे पुर यकीन लहजे पर अम्मी मुझे देख कर रह गई। उन्होंने कुरान मजीद की आयत पढ़ते हुए मेरे ऊपर फूंका। शाम को वो कहीं जाने के लिए तैयार होने लगी और मुझे भी कहा, आयजा वजू कर लो, कपड़े भी बदल दो, हमें एक जगह जाना है। मैंने बाथरूम जाकर वजू करने के लिए नल खोला, मगर अगले ही लम्हे मैं दहशतजदा होकर पीछे हटी। नल से पानी की बजाय सुर्ख और गर्म खून निकल रहा था। मैं चीखते हुए बाहर भागी। अम्मी भी अपने कमरे के बाथरूम के बाहर हैरान और परेशान खड़ी थीं। अम्मी, वो बाथरूम के नल से खून आ रहा है। अम्मी ने कहा, मेरे बाथरूम में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। खैर अम्मी मुझे लेकर सफिया खाला के पोर्शन में चली गई। वहाँ हमने सफिया खाला को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और वहीं पर हमने वज़ू वगैरह किया। फिर हम तीनों अम्मी की गाड़ी में अंदरूने शहर एक कुंचान आबाद जगह पहुँच गए। वहाँ एक पीर साहब का आस्थाना था और ये बात वहाँ पहुँचकर मुझे मालूम हुई। उनके बारे में सफिया खाला की किसी जानने वाली ने बताया था। काफी देर बैठने के बाद हमारा नंबर आया। पीर साहब ने सारे हालात सुनने के बाद अम्मी को कहा, लड़की पर आसेब का साया है, मुझे इसकी जान छुड़ाने के लिए इस पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए आप दोनों बाहर चली जाएं। मुझे ये शख्स कहीं से भी कोई पीर वीर नहीं लग रहा था। अम्मी और सफिया खाला की वजह से मैं चुप थी। उसकी बात सुनने के बाद मुझे यकीन था कि अम्मी मुझे हरगिज भी इसके साथ अकेला नहीं छोड़ेंगी। लेकिन उस वक्त मुझे सख्त हैरत हुई जब मैंने अम्मी को सर हिलाकर बाहर जाते हुए देखा। उस वक्त वो किसी पढ़ी लिखी डॉक्टर की बजाय सिर्फ एक मजबूर माँ नजर आ रही थी। अम्मी के बाहर जाते ही उस शख्स ने पीरी मुरीदी का चोला उतार फेंका।
اس کے چہرے پر ہवस اور خباثت ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا تو میں فوراً پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس نے پکڑ لیا۔ میں چیخنے چلانے لگی تو باہر موجود امی نے گھبرا کر اندر آنا چاہا، مگر پیر کا ایک چیلا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں بی بی، اندر پیر صاحب جن نکال رہے ہیں، اندر مت جانا ورنہ وہ جن تمہاری بیٹی کو مار دے گا۔ امی بے بسی سے اسے دیکھ کر پیچھے ہٹ گئیں۔ میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ وہ جعلی پیر مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے اسے دور گرتے دیکھا۔ اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میں نے اپنے سامنے عامر کو دیکھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ عامر، میں نے بے یقینی سے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ میرے بال سنوارتے ہوئے بولا، تم ٹھیک ہو نا؟ میں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ عامر، وہ کہتی ہے کہ تم جن سے آتے ہو، وہ تمہاری منگیتر ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے نا؟ میں اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی، ورنہ اس بات پر ضرور غور کرتی کہ اس بند کمرے میں عامر کیسے آیا۔ عامر نے مجھے کوئی جواب دینے کے بجائے سہارا دے کر اٹھایا، پھر اس نے پیر کو بھی لات مار کر اٹھایا۔ اس کے کہنے پر پیر نے امی سے یہ کہہ کر مجھے گھر بھیج دیا کہ اب آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ بعد میں اس نے اس پیر کے ساتھ کیا کیا اس کا تو مجھے علم نہیں۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور رونے لگی۔ اسی وقت وہ جنزادی پھر سے آ گئی۔ اس بار وہ بہت دکھی تھی۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے مجھے کہا، آئزہ، تم بھی تو ایک لڑکی ہو، تم بھی تو محبت کو جانتی ہو، مجھے میرا عامر واپس کر دو۔ میں بچپن سے اس سے محبت کرتی رہی ہوں، اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی آہذاری دیکھ کر میرا دل بھی پسیج گیا۔ میں نے اس سے کھوکھلی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، تمہاری محبت جیت گئی اور میں ہار گئی۔ اب عامر تمہارا ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ اسی وقت وہاں پر عامر بھی ظاہر ہو گیا۔ اس نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، آئزہ، اس کی باتوں میں مت آؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا، تم سچ مچ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ وارفتگی سے بولا، ہاں آئزہ، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ یاد ہے نا وہ بلی کا بچہ؟ وہ میں ہی تھا جو اس روپ میں تم سے ملنے اور تمہیں دیکھنے آتا تھا۔ پھر جب تم بڑی ہوئی تو میں تم سے انسانی روپ میں ملا اور تم مجھ سے پیار کرنے لگی۔ لیکن پھر اس دن پارک میں اس نے ہم دونوں کو دیکھ لیا اور یہ تمہیں تکلیف پہنچانے لگی۔ میں نے اس لیے تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ کہیں تم مجھ سے ڈر کر دور نہ ہو جاؤ۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ پھر میں نے ایک نظر اس جن سادی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی عامر کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے آنسوؤں نے مجھ سے وہ فیصلہ کروا لیا۔ میں نے عامر سے کہا، عامر، میں تمہارے جھوٹ بولنے پر تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن اگر تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے تو اس محبت کی قسم دے کر کہہ رہی ہوں تمہیں کہ تم زہرا کو اپنا لو۔ اس کی محبت میری محبت سے زیادہ طاقتور ہے۔ جاؤ عامر، میری دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے آنسو چھپانے کے لیے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ عامر میری باتوں سے دل برداشتہ ہو کر جا چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے عامر اور زہرا کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے امی کی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ اب اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ میں بہت خوش ہوں، لیکن اب بھی کبھی بھی عامر کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔